Hi friends, welcome to DM classes. Today we will start with practice set 3.1. Question number first. In the adjoining figure, angle ACD is an exterior angle of triangle ABC. Angle B equal to 40 degree, angle A equal to 70 degree. Find the measure of angle ACD. Solution. Diagram. A, B, C and D. देखिए हमें यहाँ पर गिवन है एंगल A इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल B इक्वल टू 40 डिग्री. It is given and angle ACD is an exterior angle of triangle ABC. It is also given. अब देखिए हमने इससे पहले थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स में पढ़ा था कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है एंगल ACD, ये एंगल दो रिमोट इंटीरियर एंगल के एडिशन के इक्वल होता है. तो बाय थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स एंगल ACD इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B. बाय theorem of remote interior angles. Therefore, angle ACD equal to, we know that angle A equal to 70 degree plus angle B equal to 40 degree. Therefore, angle ACD equal to 70 degree plus 40 degree equal to 110 degree. Answer. Question number second. In triangle PQR, angle P equal to 70 degree, angle Q equal to 65 degree, then find angle R. Solution. Angle P equal to 70 degree and angle Q equal to 65 degree. It is given. In triangle PQR, अब देखिए यहाँ पर ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री. तो यहाँ पर हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके लिख सकते हैं एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री. विच प्रॉपर्टी? सम ऑफ द मेजर of the angles
of a triangle is 180 degree. Then substitute the value of angle P and angle Q. Therefore, angle P equal to 70 degree plus angle Q equal to 65 degree plus angle R equal to 180 degree. Therefore, 70 degree plus 65 degree equal to 135 degree plus angle R equal to 180 degree. Therefore, angle R equal to 180 degree minus 135 डिग्री. ये 135 को इक्वल टू के राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो साइन चेंज करके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा. देयरफॉर एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री इक्वल टू 45 डिग्री. आंसर. Question number 3. The measure of angles of a triangle are x degree, x minus 20 degree, x minus 40 degree, find the measure of each angle. Solution. The measure of the angles of a triangle are x degree, x minus 20 degree, x minus 40 degree. It is given. Therefore, अब यहाँ पर देखिए हमें वही प्रॉपर्टी का यूज़ करना है जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में यूज़ किया था. सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री. तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लिख सकते हैं x डिग्री प्लस x माइनस 20 डिग्री प्लस x माइनस 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री बाय sum of the measures of the angles of a triangle is 180 degree. अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. उसके लिए हमें इस ब्रैकेट ओपन करना होगा. तो ब्रैकेट ओपन करके इस इक्वेशन को हमने लिख लिया. अब हमें इसको सॉल्व करना है. तो देखिए x प्लस एक्स प्लस एक्स, तो 3x लिख सकती हूँ यहाँ पर मैं. माइनस 20 माइनस 40 माइनस माइनस प्लस और 20 प्लस 40 इक्वल टू 60 इक्वल टू 180 डिग्री. Therefore 3x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये माइनस 60 इक्वल टू के राइट हैंड साइड के जाके प्लस का हो जाएगा तो प्लस 60 डिग्री. Therefore 3x इक्वल टू 180 प्लस 60 इक्वल टू 240. Therefore x equal to 240 divided by 3. 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 0. Therefore x equal to 80 degree. Therefore the measures of the remaining
of the remaining angles are x minus 20 degree equal to 80 degree minus 20 degree equal to 60 degree, and x minus 40 degree equal to 80 degree minus 40 degree equal to 40 degree. Therefore, the measures of the angles of the triangle are 80 degree, 60 degree and 40 degree. Answer. Question number 4. The measure of one of the angles of a triangle is twice the measure of its smallest angle. And the measure of the other is thrice. The measure of the smallest angle find the measure of the three angles. Find the measures of the three angles. सॉल्यूशन. अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें बोला हुआ है कि एक स्मॉलेस्ट एंगल है. पहले उसका क्या बोला है, एंगल of a triangle is twice the measure of its smallest angle, and the measure of the other is thrice the measure of the smallest angle. एक बार 2x और एक बार 3x. तो हम सबसे पहले लेट करते हैं. लेट द मेजर of the smallest angle be x degree. One of the angles is twice the measure of the smallest angle. Therefore, measure of the smallest angle equal to 2x degree
another angle is thrice the measure of the smallest angle. Therefore, measure of the smallest angle equal to 3x degree. Therefore, the measure of the remaining two angles of the remaining two angles are 2x degree and 3s डिग्री। अब यहाँ पर देखिए, हमें इस क्वेश्चन में कहा गया था कि एक स्मॉलेस्ट एंगल है जो कि x, हमने उसे x माना। अब वो स्मॉलेस्ट एंगल बाकी दो एंगल्स का एक बार ट्वाइस है और एक बार थ्राइस है। तो ऐसे करके हमें इस एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को फाइंड करना है। तो सबसे छोटा एंगल क्या हो जाएगा, x। फिर बाकी जो दो रिमेनिंग एंगल्स थे उसे हमने एक बार ट्वाइस लिखा, एक बार ट्वाइस लेके लिखा और एक बार थ्राइस करके लिखा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि जो स्मॉलेस्ट एंगल है ऑफ ए ट्रायंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट एंगल एंड द मेजर ऑफ अदर इज थ्राइस द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल। स्मॉलेस्ट एंगल का ट्वाइस है और थ्राइस है, तो इसलिए हमने यहाँ पर रिमेनिंग टू एंगल्स 2x एंड 3x लिया। नाउ x डिग्री प्लस 2x डिग्री प्लस 3x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री बाय सम ऑफ द measures of the angles of a triangle is 180 degree. Therefore, अब हमें यहाँ पर इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखिए x प्लस 2x 3x 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 6x इक्वल टू 180। देयरफॉर x इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 6, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 0। देयरफॉर x इक्वल टू 30 डिग्री। Therefore, the measures of the remaining angles are 2x degree equal to 2 into 30 degree equal to 2 into 30 means 60 degree and 3x degree equal to 3 into 30 degree equal to 3 3 is 9 means 90 degree. Therefore, the measures of the three angles of the triangle are 30 degree, 60 degree and 90 degree. Answer. Question number 5. In the adjoining figure,
adjoining figure measures of some angles are given using the measures find the values of x, y and z. Solution: angle NET equal to 100 degree and angle EMR equal to 140 degree. It is given. अब सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना देती हूँ. अब देखिए एंगल NET इक्वल टू 100 डिग्री एंड एंगल EMR इक्वल टू 140 डिग्री. ये हमें दिया हुआ है. अब हमें फाइंड करना है एंगल X, Y एंड Z की वैल्यू. तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं एंगल Z की वैल्यू. तो यहाँ पर देखिए एंगल Z की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर इन दोनों एंगल्स को देखिए अगर ऐड करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है. मतलब ये दोनों ही एंगल्स लीनियर पेयर से हम इक्वल बता सकते हैं. तो एंगल EMN प्लस एंगल EMR इक्वल टू 180 डिग्री. लीनियर पेयर बाय लीनियर पेयर. अब देखिए एंगल EMN प्लस एंगल EMR इक्वल टू कितना 140 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री. देयरफॉर एंगल EMN इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री 140 डिग्री. देयरफॉर अब यहाँ देखिए एंगल EMN को हमने Z से डिनोट कर रखा है. तो एंगल Z इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 माइनस 140 इक्वल टू 40 डिग्री. सेकेंड हम फाइंड करेंगे एंगल Y. तो यहाँ पर भी देखिए हम लीनियर पेयर का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों ही एंगल्स को अगर हम ऐड करके लिखेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी हमें. तो ऑल्सो एंगल NET प्लस एंगल NET प्लस NEM इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन angles in a linear pair therefore angle NET equal to 100 degree plus angle NEM equal to 180 degree. Therefore angle NEM equal to 180 degree minus 100 degree. Therefore एंगल NEM. अब यहाँ पर देखिए एंगल NEM को Y से डिनोट किया गया है. तो एंगल Y इक्वल टू 180 माइनस 100 मीन्स 80 डिग्री. Therefore Y इक्वल टू 80 डिग्री.
यहाँ देखिए इस ट्रायंगल में अब हमें सिर्फ एंगल x की वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन हम पहले एंगल x की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते थे जब तक हमें एंगल y और एंगल z की वैल्यू नहीं मालूम थी। तो हमने एंगल y एंगल z की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो अब हम यहाँ पर ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी का यूज़ करके एंगल x की भी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम एंगल x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इन ट्रायंगल ENM, थर्ड, इन ट्रायंगल ENM, एंगल ENM प्लस एंगल NEM प्लस एंगल EMN इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों एंगल्स को ऐड करके हमने 180 डिग्री लिखा। बाय सम ऑफ द मेजर्स of the angle of a triangle is 180 degree. Therefore, angle ENM equal to x plus angle NEM। यहाँ देखिए एंगल NEM एंगल y है और एंगल y की वैल्यू हमने क्या फाइंड करी है 80। और इसी तरह एंगल NME या N या EMN हम एंगल Z है और एंगल Z की वैल्यू हमने फाइंड की है 40, मीन्स 80 प्लस 40, 80 प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। Therefore, x plus 80 plus 40 equal to 120 degree equal to 180 degree. Therefore, x equal to 180 degree minus 120 degree. Therefore, x equal to 60 degree. 180 minus 120 equal to 60 degree. Therefore, angle x equal to 60 degree, y equal to 80 degree and z equal to 40 degree. Answer. Question number 6. In the adjoining figure, line AB is parallel to line DE. Find the measures of angle DRE and angle ARE using given measures of some angles. Diagram. $70 degree. Solution. फर्स्ट, अब यहाँ पे देखिए हमें फाइंड करना है एंगल DRE, एंगल DRE ये एंगल फाइंड करना है और एंगल ARE, एंगल ARE हमें इन दोनों एंगल्स को फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले उसके लिए एंगल D फाइंड करेंगे। एंगल D फाइंड करने से क्या होगा, हमारे पास इस ट्रायंगल के दो एंगल्स आ जाएंगे। दोनों एंगल्स आने के बाद हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके एंगल R को फाइंड कर लेंगे।
देन लीनियर पेयर एंगल्स का यूज़ करके हम इस एंगल्स को भी फाइंड कर लेंगे। फर्स्ट एंगल बी ए डी इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल डी ई आर इक्वल टू 40 डिग्री। इट इज गिवन। Line AB is parallel to line DE and segment AD is their transversal. Therefore, angle EDA इक्वल टू एंगल BAD। अब देखिए यहाँ पर मैंने बताया था कि सबसे पहले हम एंगल D को फाइंड करेंगे। तो ये यहाँ देखिए एक जेट फॉर्म बन रहा है और जेट फॉर्म में जो ट्रांसवर्सल लाइन है AD, ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड बनने वाले एंगल्स, दोनों एंगल्स इक्वल होंगे किससे? अल्टरनेट एंगल से। तो हमने यहाँ पर लिखा एंगल EDA इज इक्वल टू एंगल BAD by alternate angles। Therefore, angle EDA इक्वल टू, अब देखिए एंगल BAD हमारे पास कितना दिया हुआ है? 70 डिग्री। तो हमने 70 डिग्री लिखा, जिससे हमारे पास एंगल EDA की वैल्यू कितनी आ गई? हमारे पास एंगल D आ गया कितना? 70 डिग्री। It is denoted by first equation in triangle DRE। अब हम इस ट्रायंगल में इस प्रॉपर्टी का यूज करके एंगल R की वैल्यू फाइंड करेंगे। एंगल EDR प्लस एंगल DER प्लस एंगल DRE इक्वल टू 180 डिग्री बाय सम ऑफ द मेजर्स of the angles of a triangle is 180 degree। Therefore, अब यहाँ पर देखिए एंगल EDR हमने इससे पहले प्रूफ किया था एंगल EDA कितना? 70 डिग्री है। तो हम एंगल EDR भी इक्वल टू 70 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि EARD आर कोलिनियर पॉइंट्स, प्लस एंगल DER इक्वल टू 40 डिग्री प्लस एंगल DRE एज इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। From equation first and ARD are collinear points। Therefore 70 plus 40 equal to 110 degree plus angle DRE equal to 180 degree। Therefore angle DRE equal to 180 degree minus 110 degree। Therefore angle DRE equal to 180 minus 110 equal to 70 डिग्री। तो हमारे पास एंगल DRE की वैल्यू कितनी आ गई? DRE इक्वल टू 70 डिग्री। अब हमें फाइंड करना है एंगल ARE। अब हमें एंगल ARE फाइंड करना है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर इन दोनों एंगल्स को अगर ऐड करेंगे तो हमारे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, मतलब 180 मिलेगा। तो यहाँ पर एंगल DRE और एंगल ARE लीनियर पेयर से इक्वल हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल DRE प्लस एंगल ARE इक्वल टू 180 डिग्री। तो इससे हम एंगल ARE की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सेकेंड, हमें एंगल ARE फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें एंगल DRE
plus angle ARE equal to 180 degree by angles in a linear pair. Therefore, angle DRE equal to 70 degree plus angle ARE equal to 180 degree. Therefore, angle ARE equal to 180 degree minus 70 degree. Therefore, angle ARE equal to 180 minus 70 equal to 110 degree. Therefore, angle DRE equal to 70 degree and angle AR equal to 110 degree. Answer. Question number 7. In triangle ABC, bisectors of angle A and B, bisectors of angle A and angle B intersect at point O if angle C equal to 70 degree, find the measure of angle AOB. ABC angle C equal to 70 degree and bisector of angle A and B intersect at point O. O. Solution. Angle OAB equal to angle OAC. Angle OAC equal to half of angle BAC. It is denoted by first equation by segment AO bisects angle BAC, same as angle OBA equal to angle OBC equal to half of angle ABC. Angle ABC, it is denoted by second equation by segment BO bisects angle ABC. In triangle ABC, angle BAC plus angle ABC plus angle ACB equal to 180 degree by sum of the measures of the angles of a triangle is 180 डिग्री. अब देखिए यहाँ पर हमें एंगल AOB ये एंगल फाइंड करना है. तो इसके लिए हमें सबसे पहले एंगल
ओ ए बी और एंगल ओ बी ए की वैल्यू फाइंड होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी का यूज़ करके ये प्रॉपर्टी यूज़ करी। अब यहाँ पर हमें इन दो एंगल्स को, एंगल ओ बी ए और एंगल ओ ए बी में चेंज करना है। तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस, we know that angle ACB equal to 70 degree equal to 180 degree. Therefore, angle BAC plus angle ABC equal to 180 degree minus 70 degree. Therefore, angle BAC plus angle ABC equal to 180 minus 70 equal to 110 degree. अब यहाँ पर देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड में बी ए सी, हाफ ऑफ बी ए सी किसके इक्वल है, एंगल ओ ए बी और ओ ए सी के इक्वल है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर भी देखिए एंगल ए बी सी का हाफ किसके इक्वल है, एंगल ओ बी ए के एंड ओ बी सी के। तो हमें ये एंगल्स फाइंड करने के लिए एंगल ओ ए बी एंड एंगल ओ बी ए फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में हाफ का मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि हाफ ऑफ बी ए सी तो हमें यहाँ पर है और ए बी सी भी मालूम है कि बी ए सी में अगर हाफ का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम इस एंगल को इक्वल में लिख सकते हैं। Therefore, multiplying both sides by 1/2. Therefore, 1/2 into BAC plus 1/2 into angle ABC equal to 1/2 into 110. 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 55 डिग्री। Therefore, अब यहाँ पर देखिए हाफ ऑफ बी ए सी, हाफ ऑफ बी ए सी की जगह मैं लिख सकती हूँ एंगल ओ ए बी, क्योंकि एंगल हाफ ऑफ बी ए सी किसके इक्वल है, एंगल ओ ए बी के। तो एंगल ओ ए बी प्लस, यहाँ देखिए इक्वेशन सेकेंड में एंगल हाफ ऑफ एंगल ए बी सी किसके इक्वल है, एंगल ओ बी ए के। तो एंगल ओ बी ए इक्वल टू 55 डिग्री, इट इज डिनोटेड बाय थर्ड इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब यहाँ देखिए हमें इक्वेशन थर्ड में एंगल ओ ए बी और ओ बी एंड एंगल ओ बी ए इन दोनों का एडिशन हमें मिल चुका है 55 डिग्री। अब अगर हम यहाँ पर एंगल ओ ए बी में, ट्रायंगल ओ ए बी में सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम एंगल ए ओ बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये दोनों एंगल्स तो फाइंड हो चुके हैं, सिर्फ ये एंगल फाइंड करना है। तो 180 से ये दोनों एंगल्स का जो एडिशन है वो माइनस कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एंगल ए ओ बी। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री by sum of the measures of the angles of a triangle is 180 degree. Therefore, we know that angle OAB plus angle OBA equal to 55 degree plus angle AOB. यहाँ देखिए एंगल OAB एंड OBA इक्वल टू कितना, 55 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो यहाँ पर इसकी जगह पर मैंने क्या लिख सकती हूँ, 55 डिग्री प्लस एंगल OAB इक्वल टू 180 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन थर्ड।
Therefore, angle AOB equal to 180 minus 55 degree. Therefore, angle AOB equal to 180 minus 55 equal to 125 degree. Answer. Question number 8. In the adjoining figure, line AB is parallel to line CD and line PQ is the transversal ray PT and ray QT are bisectors of angle BPQ and angle PQD respectively. Prove that measure of angle PTQ equal to 90 degree. Diagram. A, B, C, D, Q and P. Given line AB is parallel to line CD and PQ is the transversal ray PT and ray QT are the bisectors of angle BPQ and angle PQD respectively. To prove measure of angle PTQ equal to 90 डिग्री. अब यहाँ पर देखिए किसी भी क्वेश्चंस में अगर हमने गिवन टू प्रूफ लिखा है, ये पूरा हमें क्वेश्चंस में गिवन रहता है, क्वेश्चंस में लिखा हुआ रहता है कि हमें क्या गिवन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमने पूरा गिवन में लिखा और नीचे जो प्रूफ दैट में लिखना था वो हमें यहाँ पर टू प्रूफ में लिख दिया हुआ है. तो सिर्फ अगर हम मान लीजिए हमें किसी क्वेश्चंस का आंसर्स नहीं आ रहा है या कुछ सॉल्यूशन नहीं समझ आ रहा है कि हम क्या करें, तो उसमें डायग्राम गिवन एंड टू प्रूव इतना भी अगर आप लिखकर आ जाएंगे तो आपको हाफ मार्क्स इजीली मिल जाएंगे. और इसके लिए आपको कोई मेहनत करने की या कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन से देख कर ही हमें लिखना रहता है. प्रूफ angle TPB equal to angle TPQ equal to half of angle BPQ. It is denoted by first equation by ray
PT bisects of angle BPQ, same as angle TQD. TQD equal to angle TQP. TQP equal to half of angle PQD, half of angle PQD. It is denoted by second equation by ray QT bisects of angle PQD. Line AB is parallel to line CD and line PQ is their transversal. It is given कि AB parallel to CD and PQ is their transversal line. Therefore, angle BPQ plus angle PQD, BPQ and PQD equal to 180 डिग्री. अब यहाँ पर देखिए ABCD दोनों पैरेलल लाइन है और PQ एक ट्रांसवर्सल लाइन है और ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड बनने वाले एंगल्स P एंड Q इंटीरियर एंगल्स होंगे. तो यहाँ पर हमने इन दोनों को प्लस करके इक्वल टू 180 लिखा बाय इंटीरियर एंगल्स. Therefore, अब यहाँ पर देखिए BPQ, तो BPQ का हाफ किसके इक्वल है? एंगल TPQ के. और यहाँ पर इक्वेशन सेकेंड में PQD का हाफ किसके इक्वल है? एंगल TQP के. तो लेकिन यहाँ पर हमें एंगल्स BPQ एंड एंगल BPQD दिया हुआ है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? हाफ का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड का लेने के लिए. 1/2 इंटू एंगल BPQ प्लस 1/2 इंटू एंगल PQD इक्वल टू 1/2 इंटू 180 डिग्री. 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 0. Multiplying both sides by 1/2. Therefore, अब यहाँ पर देखिए हमें एंगल BPQ हाफ ऑफ एंगल BPQ किसके इक्वल है? एंगल TPQ और एंगल TPB और TPQ. तो हम एंगल लेंगे TPQ एंड TQP क्योंकि हमें इन ट्रायंगल में किसका एंगल फाइंड करना है? एंगल PTQ. एंगल PTQ इज 90 डिग्री, हमें ये फाइंड करना है. तो उसके लिए हमें इन दोनों एंगल्स को फाइंड करना होगा. तो हम यहाँ पर एंगल लेंगे हाफ ऑफ एंगल BPQ इक्वल टू एंगल TPQ प्लस हाफ ऑफ एंगल PQD इक्वल टू एंगल TQP इक्वल टू 90 डिग्री. It is denoted by third equation from equation first and second. अब यहाँ देखिए इस ट्रायंगल में ट्रायंगल TPQ में हम एंगल P एंड एंगल Q को ऐड करके कितना 90 डिग्री आया. तो हम यहाँ पर सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री का यूज़ करके, इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम एंगल T की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं. इन ट्रायंगल PTQ, therefore TPQ plus angle TQP
plus angle PTQ equal to 180 degree by sum of the measures of the angles of a triangle is 180 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन थर्ड में हमने एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी मतलब इन दोनों एंगल्स को ऐड करके कितना 90 डिग्री लेकर आए हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड 90 डिग्री प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री, therefore angle PTQ equal to 180 degree minus 90 degree, therefore angle PTQ equal to 90 degree, therefore measure of angle PTQ equal to 90 degree, answer from equation third. Question number 9. Using the information in the adjoining figure, find the measures of angle A, angle B and angle C. सॉल्यूशन। अब यहाँ पर देखिए हमें एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम एंगल सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये 100 डिग्री है और एंगल सी, इन दोनों एंगल्स को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। मतलब यहाँ पर हम लीनियर पेयर का यूज़ करके एंगल सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट एंगल सी प्लस 100 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री by linear pair. Angle C equal to 180 degree minus 100 degree, therefore angle C equal to 180 minus 100 equal to 80 डिग्री। तो हमारे पास एंगल C की वैल्यू आ गई 80 डिग्री। सेकेंड एंगल B इक्वल टू 70 डिग्री बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ पर देखिए ये दोनों ही एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल लिख सकते हैं। तो एंगल बी इक्वल टू 70 डिग्री आ जाएगा बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। थर्ड अब यहाँ पर हम सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इक्वल टू 180 लिखकर हम एंगल ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री बाय सम ऑफ द measures of the angles of a triangle is 180 degree. We know that angle A plus angle B equal to 70 degree,
plus angle C equal to 80 degree equal to 180 degree. Therefore, angle A plus 70 plus 80 equal to 150 degree equal to 180 degree. Therefore, angle A equal to 180 degree minus 150 degree equal to 30 degree. Therefore, angle A equal to 30 degree, angle B equal to 70 degree and angle C equal to 80 degree. Answer. Question number 10. In the adjoining figure, line DE parallel to line GF, line DE parallel to line GF, ray EG and ray FC are bisector of angle DEF and angle DFM, respectively. Prove that first, angle DEG equal to half of angle EDF. Second, EF equal to FC. Diagram. प्रूफ फर्स्ट. अब देखिए फर्स्ट में हमें प्रूफ करना है कि एंगल DEG इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल EDF. यहाँ पर देखिए एंगल DEG इक्वल टू एंगल FEG. DEG and angle FEG इक्वल टू x, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों ही एंगल्स इक्वल हैं तो हमने इसको इक्वल बता के x जे डिनोट कर दिया. इट इज डिनोटेड बाय फर्स्ट इक्वेशन. रे EG bisects angle DEF. Angle GFD, angle GFD equal to angle GFM. यहाँ पर देखिए ये दोनों एंगल्स भी इक्वल है तो इस दोनों एंगल्स को हमने y से डिनोट किया. इक्वल इट इज डिनोटेड बाय सेकेंड इक्वेशन बाय रे FG bisect of angle DFM. FG bisects of angle DFM. Line DE is parallel to line GF. यहाँ देखिए DE and GF दोनों लाइन पैरेलल है and DF is their transversal line. DF
is their transversal. It is given. Therefore, angle EDF equal to angle GFD. अब देखिए कौन से एंगल EDF एंड एंगल GFD. यहाँ देखिए ये दोनों ही एंगल्स ये दोनों ही लाइंस पैरेलल हैं और DF एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो यहाँ पर देखिए इनके अपोजिट साइड बनने वाले एंगल्स दोनों इक्वल होंगे किससे? अल्टरनेट एंगल से. और यहाँ पर एक जेड फॉर्म भी बन रहा है, देखिए कि जेड फॉर्म बन रहा है. जेड फॉर्म में बनने वाले एंगल्स क्या कहलाते हैं? अल्टरनेट एंगल. तो हमने ये दोनों एंगल्स को इक्वल लिख दिया बाय अल्टरनेट एंगल. बाय अल्टरनेट एंगल्स. Therefore, एंगल EDF इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए हमने GFD को हमने किससे डिनोट किया है? Y से. GFD इक्वल टू Y है, तो यहाँ पर मैं Y डिग्री लिख सकती हूँ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से. इट इज डिनोटेड बाय थर्ड इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड. तो हमारे पास एंगल EDF भी कितना आ गया? Y डिग्री. देन लाइन DE is parallel to line GF and EM is their transversal. अब यहाँ पर देखिए DE और GF तो पैरेलल लाइन है, लेकिन अब यहाँ पर हमने EM को क्या बताया? एक ट्रांसवर्सल लाइन बताया है. तो इससे हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर DEF एंड GFM ये दोनों ही एंगल्स इक्वल हो सकते हैं. GFM एंड DEF ये दोनों ही एंगल्स इक्वल होंगे किससे? करस्पॉन्डिंग एंगल से, क्योंकि ये पैरेलल लाइन के ऊपर बनने वाले एंगल से और ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड बन रहे हैं, मतलब ये करस्पॉन्डिंग एंगल से दोनों एंगल्स इक्वल लिख सकती हूँ मैं. Therefore, angle DEF equal to angle GFM by corresponding angles. Therefore, अब यहाँ पे देखिए एंगल एडिशन प्रॉपर्टी से मैं लिख सकती हूँ DEG प्लस एंगल FEG इक्वल टू एंगल GFM. क्योंकि यहाँ पर देखिए DEF लिखा हुआ है. DEF यहाँ पर मैंने इससे पहले ही आपको बताया था कि ये जो EG है बाइसेक्ट कर रहा है किसको? एंगल DEF को. मतलब ये दोनों एंगल्स को मैं ऐड करके यहाँ पर लिख सकती हूँ एंगल DEG प्लस एंगल GEF. एंगल GEF इक्वल टू एंगल GFM. एंगल्स एडिशन प्रॉपर्टी. Therefore, अब यहाँ पर देखिए DEG को हमने x से डिनोट किया था और एंगल GEF को भी हमने x से डिनोट किया, मतलब दोनों ही एंगल्स क्या हैं? x है. तो यहाँ पर मैं इन दोनों ही एंगल्स की जगह पर मैं x डिग्री लिख सकती हूँ. और यहाँ पर देखिए GFM कौन सा एंगल है? GFM. यहाँ पर हमने GFM को y डिग्री से डिनोट किया है, मतलब मैं यहाँ पर y डिग्री लिख सकती हूँ. Therefore, x degree plus x degree equal to y degree from first and second. From equation first and second. Therefore, x plus x means 2x degree equal to y degree. Therefore,
x डिग्री इक्वल टू 1/2 y डिग्री। ये 2x के मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के राइट हैंड साइड लेके गई तो यहाँ पर ये y के डिवाइड में आ गया। देयरफॉर अब यहाँ पर देखिए x डिग्री को हमने किससे डिनोट किया था? DEG से। DEG एंगल DEG इक्वल टू हाफ ऑफ y डिग्री। y डिग्री मीन्स एंगल EDF, एंगल EDF। यहाँ पर हमने इक्वेशन थर्ड में लेकर आए एंगल EDF इक्वल टू y डिग्री, और यहाँ पर हमने एंगल DEG को x डिग्री से डिनोट किया था, तो हमने x की जगह पर क्या लिखा? एंगल DEG, एंड y की जगह पर हमने लिखा एंगल EDF फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट में हमें यही प्रूफ करना था। अब सेकेंड में हमें प्रूफ करना है कि EF इक्वल टू FG। EF इक्वल टू FG, हमें ये दोनों साइड इक्वल है ये प्रूफ करना है कि EF इक्वल टू FG। लाइन DE is parallel to line GF and GE is their transversal. It is given, and therefore angle DEG इक्वल टू एंगल FGE। यहाँ इन दोनों एंगल्स को हम अल्टरनेट एंगल से इक्वल लिख सकते हैं। देखिए DEG ये एंगल, और एंगल FGE एंगल FGE ये एंगल। क्योंकि यहाँ पर देखिए हमने क्या बताया, DE एंड GF दोनों ही पैरेलल लाइन है, जहाँ GE एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो यहाँ पर देखिए ये एक जेड फॉर्म बन रहा है, ये एक जेड फॉर्म बन रहा है। तो इस जेड फॉर्म में बनने वाले एंगल्स अल्टरनेट एंगल से इक्वल होते हैं। तो ये एंगल G एंड एंगल E को हमने इक्वल बताया किससे? बाय अल्टरनेट एंगल। It is denoted by fourth equation. Therefore, angle FEG equal to angle FGE। अब देखिए यहाँ पर देखिए इक्वेशन फर्स्ट में DEG इक्वल टू किसके? एंगल FEG के। तो यहाँ पर हम एंगल DEG की जगह पे लिख सकती हूँ एंगल DEFEG। तो मैंने यहाँ पर DEG इक्वल टू लिखा एंगल FEG इक्वल टू एंगल FGE फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ। It is denoted by fifth equation. Therefore, in triangle FGE, यहाँ पर हमने इक्वेशन फिफ्थ में प्रूफ किया है कि एंगल FEG इक्वल टू एंगल FGE, ये दोनों एंगल्स इक्वल है। कौन से एंगल? एंगल FEG, एंगल FEG एंड एंगल FGE, ये दोनों ही एंगल्स इक्वल हमने इक्वेशन फिफ्थ में प्रूफ किया है। तो उससे हमने यहाँ पर लिखा फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ। अब देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं EF इक्वल टू FG बाय कन्वर्स ऑफ SSLS ट्रायंगल थ्योरम। हैंस प्रूफ। अब देखिए यहाँ पर हमें यही प्रूफ करना था सेकेंड में कि EF इक्वल है किसके? FG के।
ई एफ इक्वल है एफ जी को, तो हमने प्रूव कर दिया किससे, कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम से। Thank you. If you like the video, please press the bell icon.